हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 3 टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एंड जर्मिनल लेयर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री और एक्सटर्नल शेप ऑफ द बॉडी, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स: asymmetrical, radial symmetrical and bilateral symmetrical. On the basis of arrangement of germinal layer, animals may be diploblastica and triploblastica. Okay, now today we know about different other features, in which next is body cavity or coelom. Body cavity means blank space, and body cavity present inside the body. Generally body's cavity or coelom means cavity present between body wall and digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी वाल के बीच अगर कैविटी है तो उसका नाम हम देंगे सीलोम और बॉडी कैविटी. ओके, सपोज दैट दिस इज बॉडी वाल एंड दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम. इफ बिटवीन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बॉडी वाल कैविटी इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड सीलोम. And coelom is the main characteristic features of classification of kingdom Animalia. On the basis of coelom, animals are classified into 3 groups. On the basis of coelom, animals are classified into 3 groups: acoelomate, pseudocoelomate and coelomate, also called eucoelomate. Acoelomate, pseudocoelomate and eucoelomate or coelomate. A means absent, coelomate means coelom. No any body cavity present, that type of animal is called acoelomate. इट मीन्स यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ बॉडी वाल है. इस डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी वाल के बीच में कैविटी नहीं है, बल्कि क्या है, टिश्यू है. दिस पार्ट इज फिल्ड विथ टिश्यू एंड बिटवीन द टिश्यू सम ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. दीज आर ऑर्गन. इन दिस कंडीशन एनिमल्स आर कॉल्ड acoelomate. Acoelomate means coelom absent. Okay, acoelomate means coelom absent, no any body cavity is present. And next, pseudocoelomate. Pseudo means false. Cavity is present between body wall and digestive system but not true. अब कैविटी है लेकिन ट्रू नहीं है, फॉल्स है. तो फॉल्स कहने का मतलब क्या है, क्यों कहेंगे फॉल्स? ओके, इट मीन्स cavity is not lined by mesoderm. Cavity is not lined by mesoderm, and mesoderm present in the form of patches. Mesoderm present in the form of patches. This type of animals are called pseudocoelomate. See, suppose that this is body wall, digestive system, and this is cavity, a space not filled with tissue, and these are mesodermal mass. These are mesodermal patches. Okay, and in this case
कैविटी इज नॉट लाइंड बाई, लाइंड बाई कहने का मतलब है कि कैविटी में जो लेयर है वह मेसोडर्म का नहीं है। दिस टाइप ऑफ सिलोम इज कॉल्ड सूडोसिलोमेट। ओके, अब देखिए ए सिलोमेट मीन सिलोम अब्सेंट, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस एग्जाम्पल ऑफ ए सिलोमेट। एग्जाम्पल ऑफ सूडोसिलोमेट अस्केलमेंथिस, प्लैटीहेलमिन्थिस ए सिलोमेट, अस्केलमेंथिस सूडोसिलोमेट, और यहाँ के आगे जो हम बढ़ेंगे वह एग्जाम्पल हो जाएगा सिलोमेट का। मीन्स एग्जाम्पल ऑफ सूडो ए सिलोमेट इज Platyhelminthes. This is phylum example. An example of pseudocoelomate, Ascalmanthus. Okay. Next is coelomate, and coelomate इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। सिलोमेट को भी हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, साइजोसिलोमेट एंड इंटेरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट एंड इंटेरोसिलोमेट। सिलोमेट एनिमल पोजेस कैविटी और सिलोम, सिलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म इन ऑल साइड्स, एंड सिलोमेट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, साइजोसिलोमेट एंड इंटेरोसिलोमेट। इन केस ऑफ साइजोसिलोमेट, सिलोम इज फॉर्म्ड बाय अ स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास, while in case of enterocoelomate, coelom is formed by fusion of gut pouches, gut means alimentary canals. Now see, suppose that this is body wall and digestive system, okay, body wall and digestive system, and this like coelom, and these lining are mesoderm. Mesoderm, cavities, coelom. अब देखिए, coelom is lined by mesoderm. coelom दोनों तरफ से अंदर और बाहर जो भी कैविटी है वह किससे लाइंड है? मेसोडर्म से। तो वैसे कंडीशन का नाम देंगे सिलोमेट्स। एंड सिलोमेट इज ऑफ टू टाइप्स, एक है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास, सपोज दैट दिस इज बॉडी वॉल, elementary canal, okay, and around the elementary canal some mesodermal mass is present, this is called mesodermal plate, mesodermal plate, okay, and this mesodermal plate splits, means बीच से डिवाइड कर जाएगा। स्प्लिटिंग मतलब डिवाइड करना। अब देखिए इस तरह से बना दिया ये स्प्लिटिंग, दिस लाइक मीन्स अ स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास, and lastly develops in this form. So it is called saiocoelomate. Saiocoelomate, in case of saiocoelomate, coelom is formed by a splitting of mesodermal mass. मेसोडर्मल मास था वह क्या हो गया? स्प्लिट, ब्रेक कर गया, अलग होने से दोनों स्प्लिट किया और बीच में ही कैविटी का फॉर्मेशन हो गया, जिस कैविटी का नाम ने दिया सिलोम। ओके, सेकेंड कंडीशन इज इंटेरोसिलोमेट। इंटेरोसिलोमेट का कंडीशन क्या है? सपोज दैट बॉडी वॉल, इनसाइड द बॉडी वॉल gut pouches, gut and mesodermal patches, these like all are fused together, this like, and now invagination, अब उसमें डिफ्रेंसिएशन हुआ या अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर गया। देखिए and after changing in this mass, means this is mesodermal part, coelom is formed. In this condition the coelomate is called enterocoelomate,
ओके एंड एग्जांपल ऑफ साइजोसिलोमेट फाइलम एनेलिडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा. इन केस ऑफ in case of enterocoelomate, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इंटेरोसिलोमेट का ओरिजिन कहां से हुआ है, तो आप याद रखेंगे इंटेरोसिलोमेट सबसे पहले फाइलम इकाइनोडर्माटा से ही अपीयर होता है. ठीक है, तो ये हुआ सिलोमेट मीन्स बॉडी कैविटी. यानी हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्मिनल लेयर, बॉडी कैविटी. अब हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. Next feature is embryonic development. On the basis of fate of blastopore, animals may be protostomous and deuterostomous. On the basis of fate means future, and blastopore means opening of archenteron. Opening of archenteron formed by invagination during gastrulation. अब देखिए बहुत सारा नया टर्म इसमें आ गया आपको. Suppose that this is zygote, diploid cell divides and forms solid ball-like structures called morula. After that, a cavity is formed due to rearrangement of cells. Cavity is called blastocele. A stage is called blastula. स्टेज का नाम देखें ब्लास्टुला, कैविटी का नाम ब्लास्टोसिल. नाउ इन ब्लास्टुला इनवैजिनेशन अकर्स. दिस लाइन देखिए यहां से अंदर की तरफ वो मूव किया एंड दिस इज कॉल्ड इनवेजिनेशन एंड दिस पोर इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर. इसी का नाम क्या देते हैं, ब्लास्टोपोर. सो ऑन द बेसिस ऑफ फेट फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोपोर एनिमल में बी प्रोटोस्टोमस ड्यूट्रोस्टोमस. अब देखिए यहां से जो इनवेजिनेशन हुआ यही फॉर्म करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, आर्केंटेरॉन, डाइजेस्टिव सिस्टम और गट. डाइजेस्टिव सिस्टम और गट का फॉर्मेशन करता है. अब इस ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा, तो जनरली यू नो देयर आर टू ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. वन इज माउथ, अदर इज एनस. डाइजेस्टिव सिस्टम का दो ओपनिंग है, एक माउथ है दूसरा एनस है. अब इस पोर से क्या बना, इफ ब्लास्टोपोर फॉर्म्स माउथ, that is called protostomus, and if blastoforms form anus, that called deuterostomus. ठीक है, अगर ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होगा तो प्रोटोस्टोमस, ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होगा क्या लाएगा, ड्यूट्रोस्टोमस. कर सकते हैं माउथ फॉर्म्स फर्स्ट, या कह सकते हो ब्लास्टोपोर से क्या बन गया, माउथ बन गया. ड्यूट्रोस्टोमस माउथ फॉर्म्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एनस. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एनस इट मीन्स ब्लास्टोपोर फॉर्म एनस. ठीक है ना, तो जब एनस बनेगा ड्यूट्रोस्टोमस, माउथ बनेगा प्रोटोस्टोमस. एग्जाम्पल प्रोटोस्टोमस का एग्जाम्पल अगर देखें,
प्लैटीहेल्मिन्थिस 2 मोलस्का। प्लैटीहेल्मिन्थिस से मोलस्का तक का जो भी होगा वो प्रोटोस्टोमस होगा। एंड इन हेटेरोस्टोमस मोलस्का के बाद मीन्स आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा टू कॉर्डाटा, एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोस्टोमस। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट हम लोग इसको देखें। नेक्स्ट इज बडी प्लान। नेक्स्ट फीचर इज बडी प्लान। नेक्स्ट इज बडी प्लान। तो बडी प्लान, थोड़ा सा बडी प्लान के पहले हमने अभी देखा बडी कैविटी, सिलोम और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सिलोम 3 तरह का बताया मैं, ए सिलोमेट, सीरोसिलोमेट और सिलोमेट। सिलोमेट जो 2 टाइप, साइजोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट। अब देखिए, अगर हम पूरे फाइलम की बात करें, सपोज दैट पॉरीफेरा फाइलम, फर्स्ट पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, अस्केल्मेंथिस, अस्केल्मेंथिस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, and chordata. These are the different phylum of kingdom Animalia. These are the phylum of kingdom Animalia. And in these animal, different types of cavity is present. Cavity of porifera is called spongocele. Okay. Cavity of porifera is called spongocele, also called paragastric cavity. Cavity of Coelenterata, Coelenteron, also called gastrovascular cavity. टीनोफोरा, Coelenteron type, as like Coelenterata, Platyhelminthes acoelomate, Ascalhelminthes pseudocoelomate, Annelida mollusca arthropoda, Schizocoelomate. These are enterocoelomate. These are enterocoelomate. Okay, अब देखिए, Annelida mollusca arthropoda. The cavity of mollusca and arthropoda is also called hemocoel. Cavity of mollusca and arthropoda is called hemocoel. Hemocoel means coelom is filled with blood. Body cavity is filled with blood, so it is called hemocoel. But hemocoel is a type of the schizocoelomate. क्वेश्चन आता है कि ये सिलोमेट है, ये सिलोमेट है, सूडोसिलोमेट है। तो ये सिलोमेट प्लैटीहेल्मिन्थिस, सूडोसिलोमेट अस्केल्हेल्मिन्थिस, बाकी इधर जो भी है वो सिलोमेट है। 3 साइजोसिलोमेट और फिर 3 इंटेरोसिलोमेट। ओके, नाउ बडी प्लान। नाउ सी बडी प्लान, इट मीन्स बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम का अरेंजमेंट क्या है। फर्स्ट, सेल एग्रीगेट टाइप।
इट मीन्स बॉडी लेवल इज सेलुलर। हम लोग देखे थे पहले ही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो यहाँ है सेल एग्रीगेट टाइप, इट मीन्स सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नो एनी ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट। ठीक है, टिश्यू cells are not organized into tissue, cell perform different types of function, example sponge or porifera, phylum porifera. Next, blind sac plan. Suppose that this is digestive system and one opening is mouth. Mouth opens in a tubular structure, tube-like structure, but other opening is not present in digestive system. It means digestive system में सिर्फ एक ही opening होगा, and this type of digestive system is called incomplete digestive system. Only digestive system opens outside the body through only one pore, and that pore is mouth, so it is called blind sac plan. अब देखिए, मैं एक पोर का नाम बताया माउथ, मतलब यहां से फूड ले रहा है। ठीक है, अब माउथ से फूड लिया, फूड का डाइजेशन होगा, उसके बाद उस कुछ वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर भी करेगा, तो बाहर भी निकलेगा इसी पोर से। ओनली वन पोर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड बॉडी प्लान इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक प्लान। बॉडी प्लान इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक प्लान। एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा, जिसका की एग्जाम्पल है हाइड्रा। आप लोग स्ट्रक्चर जानते होंगे, दिस लाइक स्ट्रक्चर है, ओनली वन पोर्स, टेंटिकल्स, और इसी पोर से फूड लेता भी है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता भी। ठीक है, तो यह है ब्लाइंड सैक प्लान, सिलेंट्रेटा एंड प्लैटीहेलमिन्थेस। Phylum Coelenterata and Platyhelminthes are the example of blind sac plan. And next is tube within tube plan. Tube within. Suppose that this is body cavity. Body cavity or body wall. Inside the body wall, digestive system is present. This line. This is digestive system. And digestive system opens outside the body through two pores. One pore is mouth, other pore is anus. This is digestive system. Digestive system, digestive tract, alimentary canal, etc. अब देखिए तो स्ट्रक्चर क्या लग रहा है, ट्यूब विद इन ट्यूब। इट मीन्स इन दिस प्लांट डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। Digestive system is complete and opens outside the body through two pores. That is called tube within tube plan. Okay, example प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद का जो भी फाइलम आ जाएगा, अस्केलमेंथिस, अस्केलमेंथिस आल्सो कॉल्ड निमैथेलमेंथिस, अस्केलमेंथिस आल्सो कॉल्ड निमैथेलमेंथिस, सो निमैथेलमेंथिस टू कॉर्डेटा। यहां के बाद का जो भी फाइलम होगा सब होगा ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट फीचर सिगमेंटेशन, हम बड़ी प्लान देख लिए। नेक्स्ट इज सिगमेंटेशन। नेक्स्ट सिगमेंटेशन, नेक्स्ट फीचर सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सिगमेंट्स। सिगमेंटेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिगमेंट, डिवीजन और डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट पोर्शन। अलग अलग डिस्टिंक्ट पार्ट में अगर बॉडी डिवाइड कर गया, उस पार्ट का नाम देंगे सिगमेंट, एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिगमेंट इज कॉल्ड सिगमेंटेशन। एंड सिमिलर रिपीटेड सिगमेंट्स, बॉडी में एक ही तरह का सिगमेंट बार बार आ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सो सिमिलर रिपीटेड सिगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामियर्स और सोमाइट्स। ओके, on the basis of segmentation, animals are classified into 3-4 groups. 1, 2, 3, 4 groups.
सूडो सिगमेंटेशन, मेटामेरिक सिगमेंटेशन, एक्सटर्नल सिगमेंटेशन, इंटरनल सिगमेंटेशन। जैसा कि नाम से पता चलता है, सूडो सिगमेंटेशन, सिगमेंट is formed by budding. Segment is formed by budding. अगर कोई लिविंग्स बॉडी है और इस लिविंग्स बॉडी से छोटा छोटा बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस लाइक, तो लग रहा है कि बॉडी एक से अधिक पार्ट में बटा हुआ है, लेकिन यहाँ जो भी पार्ट बना है वो किसके कारण? ड्यू टू बर्डिंग। दिस टाइप ऑफ segmentation is called pseudo segmentation. Example, tinea means flat worm, sorry, tapeworm. Tinea means tapeworm, also called tapeworm. It is a member of Platyhelminthes. Okay, next, metameric segmentation. Segmentation occurs internally as well as externally. Segmentation externally and internally both. दोनों कंडीशन में अगर हम इसके लिए देखें, बाहर के साथ साथ अंदर से भी एक से अधिक सेगमेंट में बटा हुआ है, दिस लाइक, दिस इज कॉल्ड मेटामेरिक सिगमेंटेशन. एग्जाम्पल, एनेलिडा. एग्जाम्पल, एनेलिडा. ओके, नेक्स्ट, एक्सटर्नल सिगमेंटेशन मीन्स सिर्फ बॉडी के बाहर से देखने से लगा कि बॉडी एक से अधिक पार्ट में डिवाइड है, लेकिन अंदर उसका सिगमेंटेशन नहीं है. इट मीन्स सिगमेंटेशन ओनली इन एक्सटर्नल अपीयरेंस, दिस लाइक. बाहर से बॉडी सिगमेंटेड दिखेगा, लेकिन अंदर कोई उसका सेप्टा नहीं है, पार्टीशन वॉल नहीं है, डिवाइड नहीं हुआ. एग्जाम्पल, आर्थ्रोपोडा सच एज कॉकरोच. एग्जाम्पल, आर्थ्रोपोडा और कॉकरोच. ओके, नेक्स्ट, इंटरनल सिगमेंटेशन. बाहर बिल्कुल प्लेन और अंदर से एक से अधिक पार्ट में डिवाइड. यहां बाहर से नहीं लग रहा कि सिगमेंटेशन है, बट इनसाइड द बॉडी पार्टीशन वॉल इज प्रेजेंट. एग्जाम्पल, कॉर्डेटा. एज फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन इज द मेंबर ऑफ कॉर्डेटा. अब बाहर से बॉडी में ऐसा नहीं लग रहा कि बॉडी एक से अधिक पार्ट में डिवाइड है, बट our body cavity is divided into two parts by a partition wall. Partition wall is called diaphragm. Upper part is called thoracic cavity. Lower part is called abdominal cavity. It means partition wall diaphragm is present that divides body cavity into two parts, thoracic cavity and abdominal cavity. बाहर से कोई सिगमेंटेशन नहीं है, अंदर से डिवाइड है. This type of segmentation is called internal segmentation. Okay. Next feature, cephalization. Next is cephalization. Cephalization. Cephalo means head, and cephalization means formation of head. Cephalization means formation of head in anterior part of body. बॉडी के इंटीरियर पार्ट में हेड का फॉर्मेशन होगा, उसका नाम हम देंगे सिफेलाइजेशन. उसका नाम क्या देंगे? सिफेलाइजेशन. फर्स्ट सीन इन प्लेटीहेलमिन्थेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिफेलाइजेशन was seen in member of platyhelminthes, but in platyhelminthes not true head is present. True head means part of body in which brain,
main part of nervous system, some sense organs and mouth means इंगेस्टिव पार्ट इज प्रेजेंट। हेड का मतलब क्या है कि ब्रेन हो, सेंस ऑर्गन हो, माउथ हो, तो कुछ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्लेटीहेलमिन्थेस में बना, लेकिन उसको हम ट्रू हेड नहीं करते। तो लिखा हूं मैं फर्स्ट सीन इन प्लेटीहेलमिन्थेस बट ट्रू सिफाइलाइजेशन सीन इन एनेलिडा एंड द मेंबर ऑफ एनेलिडा दैट इज पॉलीकीटा। ओके, अब देखिए प्लेटीहेलमिन्थेस से शुरू हुआ, तो प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद अस्केल और निमेथेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांड्रोमाटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो ऐसा नहीं है कि प्लेटीहेलमिन्थेस से सिफाइलाइजेशन स्टार्ट हुआ और आगे सारा फाइलम मिलेगा। प्लेटीहेलमिन्थेस में फॉल्स कह सकते हैं, ट्रू सिफाइलाइजेशन एनेलिडा में कहेंगे, एंड सम फाइलम सच एज निमेथेलमिन्थेस आल्सो कॉल्ड अस्केलमिन्थेस, एकांड्रोमाटा एंड हेमिकॉर्डेटा, इन दीज थ्री फाइलम सिफाइलाइजेशन नॉट अकर्स। इस तीन में सिफाइलाइजेशन का केस नहीं होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज circulatory system. Next is circulatory system. You know, circulatory system is a system that helps in transportation of different types of materials in different parts of the body. Okay, and on the basis of circulatory system, animals are classified into also two groups or two parts. सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर भी एनिमल्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को कहेंगे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर एनिमल्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वन इज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम and second is closed type circulatory system. Open type means a type of circulatory system in which no any special duct, tube, capillaries are present for transportation of materials from one parts to another parts. अगर अपने हम बॉडी का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो तुम जानते होगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरी है, वेन है, और उस आर्टरी और वेन के द्वारा ब्लड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। बट इन केस ऑफ ओपन टाइप्स नो एनी डक्ट इज प्रेजेंट, नो एनी डक्ट प्रेजेंट फॉर सर्कुलेशन and transportation occurs through body cavity, coelom और टिश्यू के बीच का जो स्पेस है, सेल का बीच का जो स्पेस है, उससे होकर के बॉडी कैविटी से होकर के मटेरियल एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, तो उसको हम कहेंगे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन। एग्जांपल आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, मोलस्का etc। लेकिन मोलस्का फाइलम का एक ग्रुप है डेट इज कॉल्ड सिफेलोपोडा। इन सिफेलोपोडा क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। ठीक है, इन सिफेलोपोडा क्लोज टाइप मीन्स ब्लड passes through a specific duct such as artery and vein. Example annelida and vertebrata। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां तक देख लिए सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर देखना चाहें, नेक्स्ट फीचर इज टेम्परेचर। On the basis of body temperature, animals are classified into two groups: cold-blooded, warm-blooded. Cold-blooded animal and warm-blooded animal.
Cold blooded means body temperature is not constant, vary according to climatic condition, according to environment. That is called cold blooded. Warm blooded, body temperature is always constant and not vary according to climatic condition or environment. जिसकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट हो वो कहलाएगा वार्म ब्लडेड, जिसका वैरी कर रहा है वो कहलाएगा कोल्ड ब्लडेड. On the basis of body temperature, animals are also classified into two groups. One is cold-blooded animal and other is warm-blooded animal. Cold-blooded means body temperature is not constant. इसका क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट. एग्जाम्पल अगर देखें, इसका एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में देखेंगे तो वर्टिब्रे में एम्फीबिया, फिश एंड रेप्टिलिया. वार्म ब्लडेड mainly two, birds and mammals. ओके, चलिए और अगर आगे देखें रिस्पायरेटरी सिस्टम. इन डिफरेंट एनिमल्स रिस्पायरेशन ऑल्सो अकर्स बाय डिफरेंट मेथड्स. In some by body surface, in some by special organs such as टिनिडिया, गिल्स, लंग्स etc. तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के आधार पर भी. तो अब हम लोग एनिमल किंगडम का जो अलग अलग फाइलम देखेंगे उसी के आधार पर कैरेक्टर्स आएगा, वहां हम लोग डिस्कस करते चलेंगे. ये मेन पॉइंट था, इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा ताकि हमेशा यूज होते रहे तो आप कंफ्यूज न करें. ठीक है ना. तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया और जिसका फर्स्ट फाइलम होगा पॉरीफेरा. ओके.